Radhika. I'm basically from Gangtok, Sikkim. And I hope you have heard about Gangtok, Sikkim, Northeast, right? So I'm from Gangtok, Sikkim. I have done my masters in tours and travel management. As you all already know what is tourism, right? आपको पता है कि tourism क्या है? एक लड़का ने already answer दे दिया. Anybody interested to answer one more time? Tourism क्या है? You? Any one of you? No? Okay. So I shall start today's lesson. आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक है? और वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है? It holds cultural and natural sites. ठीक है? वर्ल्ड हेरिटेज होता है जहाँ पे आपको कल्चरल और नेचुरल साइट्स देखने को मिलेगा. ठीक है? और यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल scientific and cultural education. Very good. So I'm going to talk about 40 UNESCO World Heritage Sites in India. ठीक है? तो फर्स्ट आता है आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट पता है कहाँ पे है? Where is it? UP. Any one of you? One more time. आगरा फोर्ट किसने बनाया है? So basically, आगरा फोर्ट बनाया है शाहजहां ने और it was built in 16 November 1945. ठीक है? ये फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है. और कब ये आगरा फोर्ट इज बिल्ट बाय शाहजहां. ठीक है? और 16th सेंचुरी में इसको दिया गया है. और सेकेंडली वी हैव अजंता केव्स. ओके, इट इज अ बुद्धिस्ट आर्ट. यहाँ पे जो अजंता केव्स में क्या होता है? इसमें बुद्धिस्ट आर्ट होता है. ठीक है? एंड इट वाज बिल्ट इन 1983. तो सेकेंड टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी में बनाया गया है. और ये कहाँ पे होता है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में है. अंडरस्टूड? थर्ड आता है, फर्स्ट कौन सा आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में? सेकेंड okay, third we have Ellora caves. It was built in 600 to 1000 AD. ठीक है? It was devoted to Buddhism, Hinduism and Jainism. Ellora caves किसके लिए बनाया है? It is devoted to Buddhism, Hinduism and Jainism के लिए. And it was quoted in 1983 अगस्त में MH में कोट किया गया है. ठीक है? फोर्थ वी हैव ताजमहल. थर्ड वी हैव it was devoted to किस कैटेगरी का रिलीजन को डिवोट किया है ये? एंड Jainism. Correct. So fourth comes Taj Mahal. It was built in 1648 by Shahjahan. किसने बिल्ड किया है? शाहजहां. किसके लिए बिल्ड किया है? As everybody knows, it was built for मुमताज. शाहजहां के वाइफ के लिए बिल्ड किया है. और it is located in आगरा, उत्तर प्रदेश. In 1983 इसको घोषित किया गया है as a UNESCO World Heritage Sites of India. So what comes under fourth category? After Ellora caves, it was built by for correct. So number 5 we have group of monuments at Mahabalipuram. ठीक है? It was built in 7th to 8th century, devoted to Lord Shiva. Monuments of Mahabalipuram किसको devote किया जाता है? हमारा great Lord Shiva को. As we already know who is Lord Shiva, right? So it is located in Tamil Nadu and 1984 में it was given a name as World Heritage. Again same thing, 1984 में इसको घोषित किया गया है. ठीक है? Group of monuments of Mahabalipuram was devoted to थोड़ा voice. Lord. Correct. So number 6 we have Sun Temple which is located in Konark. It was built in 13th century. Konark को क्या भी बताया जाता है? Sun God भी बताया जाता है. ठीक है? और it is located in Odisha, Puri. ठीक है? It is anybody has been to Puri, Odisha? कोई गए हैं यहाँ पे? No. If you visit to Odisha, you must visit to Sun Temple. ठीक है? So 1984 में इसको घोषित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए.
Anybody wants to recall again? Yes, tell me. First कौन सा आता है? What are the site में? Second? Ajanta Cave. Very good. Third? Ellora Cave. Fourth? Taj Very Mahal. good. Fifth? Monument. Yes, a group of monuments of Mahabalipuram. It is devoted to. It is devoted. Very good. Number 6 we have. Okay, Sun Temple में क्या है basically? उनसे गॉड माना गया. Sun god. Okay, which is located in Konark. Very good, guys. Very good. Number 7. Number 7 we have Kaziranga National Park. किसी ने सुना है Kaziranga National Park? Very good. Where is it located? It is located in Assam. ठीक है? You know what is the most important thing about Kaziranga National Park is that वहाँ पे one horned rhino होता है. वहाँ पे ठीक है? एक सिंग वाला कैंट. हाँ. वहाँ पे क्या होता है? एक सिंग वाला कैंट. सबको पता था ये? Very good. So it was given in 1985. It was given as the World Heritage Sites of India. कोई भी बात कर सकते हो खुल के मेरे साथ, ठीक है? Anybody can be open. किसी को वो बात करना है, किसी को if you want to answer, you can just tell me, ma'am. Raise your hand and just tell me. ठीक है? किसी को शर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है? Okay. So 8 we have Keoladeo National Park, which is in राजस्थान, ठीक है? और वहाँ पे क्या देखा जाता है? What is the special thing about that national park is like they have got a migrated aquatic birds. वहाँ पे क्या देखा जाता है? Migrated aquatic birds, ठीक है? और वो कहाँ से माइग्रेट हुआ है? अफगानिस्तान से हुआ है, चाइना से हुआ है और साइबेरिया से हुआ है, ठीक है? One of the most unique thing about that park is you will get to see the migrated birds. Okay, which has migrated from Afghanistan, China and Siberia. So 1995 में यूनेस्को घोषित किया गया है कि this park is quoted as this करके, ठीक है? नंबर 7 में क्या था? काजीरंगा नेशनल पार्क. वेरी गुड. यहाँ पे सबसे यूनिक चीज क्या देखा जाता है? एक सिंग वाला कैंट. वेरी गुड. So what about Keoladeo National Park? यहाँ पे राजस्थान में क्या है? Tell me. अभी मैंने बताया. Birds. जहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स है, कहाँ से आए? अफगानिस्तान से, चाइना से और साइबेरिया से. So we have in number 9 Manas Wildlife Sanctuary. So Manas Wildlife Sanctuary है आपका असम में. 1985 में इसको घोषित किया था यूनेस्को ने, ठीक है? 1985 में. बहुत पहले का है, देखना डेट्स वगैरह. It goes back to that century. बहुत पुराना है, ठीक है? That's why it is given as a UNESCO World Heritage Sites of India. Churches and Convents of Goa, built by Portuguese. Churches and Convents of Goa. किसी ने सुना है ये वाला? नहीं सुना होगा. Built by Portuguese. Portuguese लोग ने बनाया है इसको, ठीक है? There are 7 churches in number. 7 churches है जिसे पोर्टुगीज ने बनाया है, ठीक है? So 1986 में यूनेस्को ने घोषित किया था इसको भी. Got it? Let me go back to 8. What is there in 8th category? 8 में क्या था? 8वें नंबर में गर्ल्स. हाँ. 9th में मानस. वेरी गुड. 10th में अभी तो बताया मैंने. Churches and Convents of Goa. So now we have in 11th number फतेहपुर सिकरी, the city of victory. इसको क्या भी बुलाया जाता है? The city of victory. ठीक है? ये है आपका आगरा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है? And it was built in 16th century. किसने बिल्ड किया था? हम लोग का अकबर ने. किसने बिल्ड किया था? अकबर. Who is अकबर? अकबर कौन था? फास्ट. मुगल एम्पायर के टाइम में कैसा था अकबर? कौन था? Who was अकबर?
He was a freedom fighter. He was not a freedom fighter, so sorry. Emperor. He was an emperor. ठीक है, पढ़ा होगा अकबर के बारे में तो नहीं पढ़ा है, it's okay. हिस्ट्री नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हाँ तो और लेंस भूल गए। शाहजहां emperor था तो उस टाइम का। शाहजहां का बाप था अकबर। बहुत अच्छा। Okay, so let me come back to number 12. 11 में क्या है? फतेहपुर सिकरी, the city of victory. ठीक है, where is it located? Where is it located? आगरा, उत्तर प्रदेश में। किसने बनाया था? शाहजहां ने नहीं बनाया, अकबर ने बनाया था। 1986 में इसको घोषित किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है। Now on the 12th number we have group of monuments of Hampi. Hampi सुना है किसी ने? नहीं सुना है ना? It is located in कर्नाटका और 1986 में इसको भी घोषित किया गया था। ठीक है, 1986 में इसको भी घोषित किया था। Now we have Khwajaruku groups of monuments built by the Chandela dynasty. ये MP में है आपका। ठीक है, it was built by Chandela dynasty. ठीक है, 10th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया है। Got it? It was built in Chandela dynasty. Okay. So 14th we have, and then this dynasty is basically devoted to Hinduism and Jainism. ठीक है, यहाँ पे हिंदुइज्म और जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, 1986 में यूनेस्को ने घोषित किया था। सो 14 वी हैव एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स सुना है? वहां पे भी इट इज डायरेक्टली डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। वो केव्स में भी पूरा आपको ना लॉर्ड शिवा का देखने को मिलता है। ओके, सो इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, बॉम्बे। कहाँ पे? महाराष्ट्र। सो इसको बोले जाते हैं सिटी ऑफ केव्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत केव्स देखने को मिलता है। सिटी ऑफ केव्स, यू नो व्हाट इज केव्स? ओके, सो 1987 में इसको घोषित किया गया है यूनेस्को ने। ओके, 1987 में इसको घोषित किया है। तो नंबर 15 वी हैव ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, इसके अंदर 3 टेम्पल्स देखा जाता है। So under this we have 3 more temples which is built by Chola Empire. Chola Empire उस टाइम में बनाया गया था। ठीक है, so वो कौन से टाइम में बनाया गया था? 11th to 12th सेंचुरी में बनाया था। So it is located in तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और 1987 में यूनेस्को ने इसको घोषित किया था। Got it? चोला टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंदर कितना टेम्पल्स है जो चोला एम्पायर ने बनाया था? वेरी गुड। कब बनाया था ये? सो दिस वाज वेरी गुड, 11th to 12th century. So now we have group of monuments at Patadakal, okay, which is located in Karnataka. ये किसने बनाया था? 7th to 8th सेंचुरी में बनाया गया था बाय चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी ने। ठीक है, 1987 में यूनेस्को ने घोषित किया था। Got it? Now on the 17th we have सुंदरबन नेशनल पार्क। कहाँ पे है सुंदरबन नेशनल पार्क? Tell me, सुंदरबन किसी ने नहीं सुना है ना? It is in West Bengal. It is in ठीक है, तो 1987 में यूनेस्को ने घोषित किया था। ठीक है, यहाँ पे किस चीज के लिए फेमस है? फेमस फॉर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। किसके लिए फेमस है? सो नाउ वी हैव ऑन द 18th नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके, एमपी उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। कोई गए हैं उत्तराखंड यहाँ पे? नोबडी हैज विजिटेड। So यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? There's lot of snow leopard here. Okay, lot of snow leopard are being seen here. So in 1988 यूनेस्को ने घोषित किया था। Got it?
Can we go back to previous thing? Previous number? To recall? 14th में क्या आता है? 14th में क्या है? Very good. Number 16. क्या आता है? क्या आता है? Group of monuments of Patadakal. Okay, you guys have to go serially. ठीक है? अभी मैं ना मतलब क्रॉस करके पूछ रही हूँ. Please go through it serially. ठीक है? In details पढ़ाई करना. अंदर अंदर जो भी है. ठीक है? Buddhist. Now on the 19th we have Buddhist monuments at Sanchi. ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है. ठीक है? कब बनाया गया था? 2nd and 1st century BC में, बिफोर क्राइस्ट के टाइम में बनाया गया था. ठीक है? और 1989 में यूनेस्को ने घोषित किया था. अगेन बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची कब बनाया गया था? 2nd and 1st century BC. Very good. Where is it located? मध्य प्रदेश. Very good. सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम. मैं पूछूंगी बाद में क्वेश्चन. So on the 20th we have Humayun's tomb, जो है दिल्ली में. ठीक है? It was built in 1970. ठीक है? Inspired by several archaeological innovation. So ये हुमायूं's tomb बनाते टाइम में कि किसके साथ इंस्पायर हुआ था? जिसने ताजमहल बनाया था ना, they got inspiration from the ताजमहल. ठीक है? ताजमहल देख के थोड़ा इनोवेशन आया कि भाई मैं भी ऐसे कुछ बनाऊंगी. Got it? So 1993 में यूनेस्को ने घोषित किया था. हुमायूं's tomb कहाँ है? दिल्ली में. तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला था कि ऐसे कुछ टॉम बनाऊंगी करके? It was built in 1900 है? जल्दी जल्दी, मतलब कंसंट्रेशन नहीं है ना, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ? आ रहा है? So अभी 21 में जाएंगे. कुतुब मीनार and its monument. कुतुब मीनार कहाँ पे है? Very good. So ये आपका 13th century में बनाया गया था. So किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है. ठीक है? 1993 में यूनेस्को ने घोषित किया है इसको. Got it? So 22 we have Mountain Railways of India. Mountain Railways of India कहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वेस्ट बंगाल 1999 में घोषित किया है. मतलब घोषित नहीं किया है, बनाया गया है. Which one? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे. Okay. Second one is नीलगिरी माउंटेन रेलवे which is in Tamil Nadu. 2005 में बनाया है, घोषित किया गया है. सो कलका शिमला आर HP. पता है ये किसी को? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया. कलका शिमला आर, कलका शिमला रेलवे. एनीवन हैव हर्ड अबाउट इट? किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं ना? यू जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है? बिकॉज दिस इज फ्रॉम हिमाचल. थोड़ा सा जानना पड़ता है अपना जगह के बारे में. गॉट इट? सो करा रहे हैं. ठीक है.